شروع ہوتی ہے۔ سورۃ انشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ جب آسمان شق ہو جائے گا اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار بھی یہی ہے، اور جب زمین دراز کی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، قرب قیامت زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقیناً دوڑنا ہے اور پھر اس سے ملنا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے ان قریب سہل حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو نا تو آپس میں گفتگو نہ کیا کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے اسے دیے جائیں گے نا، تو وہ جو داہنے طرف والے ہوں گے وہ تو اس دن مسرور ہوں گے، باغوں میں ہوں گے چین کے، اور شاد شاد اپنے نامہ اعمال لیتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی طرف بڑھ جائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے پکار پکار کے کہ یہ دیکھو میں نے اپنے رب کے وعدے کو بالکل سچا پایا، میرے رب نے وہ جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا کہ تجھے جنت دے دی جائے گی، اس کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا۔ جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں نا اسکول میں، تو جب ان کو کوئی ہائی پوزیشن ملتی ہے تو وہ بڑے خوش گھر لوٹتے ہیں، اور تب ماں بھی مسرور، تب باپ بھی مسرور، تب بھائی بھی مسرور، سب خوشی خوشی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیں گے، تو وہ جو دنیا کے اوپر اپنے آپ کو رب کی اطاعت میں رکھے ہوئے تھے وہ اس دن خوش ہوں گے، اور ان کے رزلٹ نامے لے کر اب رب کا شکر ادا کریں گے کہ بے شک اللہ جو وعدہ دنیا میں تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو ہم نے بالکل سچا پا لیا، بے شک تو بے اچھا کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے سورۃ بروج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کا وعدہ، وشاہد و مشہود، کہ جو اس دن جو گواہ ہوں گے سامنے ہوں گے، قتل اصحاب الاخدود، اور اس دن کے جس دن حاضر ہوں گے، نار ذات الوقود، کھائی والوں پر لعنت، اذ ہم علیہا قعود، اور وہ اس دن بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے ایمان افروز۔ مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جب اس کا جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج جس سے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ راہ میں ایک راہب رہتا تھا، لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا، اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا، یعنی اس لڑکے نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایک دن لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک مخیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، اگر یہ راہب تجھے پیارا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا اور اس کی دعا سے کوڑی اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کو جب اس لڑکے کے بارے میں پتہ چلا تو بادشاہ نے اپنے ایک مصاحب کے بچے کو جو کہ نابینا ہو گیا تھا لڑکے کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کو اچھا کر دو۔ لڑکے نے دعا کی، وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا تجھے کس نے اچھا کیا؟ تو اس لڑکے نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس پر سختیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس لڑکے نے اس راہب کا پتہ بتایا۔ اس نے اس لڑکے پر سختیاں شروع کر دیں تو اس نے راہب کا پھر پتہ بتا دیا۔ راہب پر سختیاں کی اور اس سے کہا کہ اپنا دین ترک کر۔ اس نے انکار کر دیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چروا دیا، پھر مصاحب کو بھی چروا دیا۔ پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس نے دعا کی تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح و سلامت واپس بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہی کہاں گئے اور یہ تو کیسے واپس آ گیا؟ تو اس لڑکے نے کہا سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی تو کشتی ڈوب گئی۔
तमाम शाही आदमी डूब गए। लड़का फिर सही और सलामत वापस आ गया। बादशाह ने कहा, वो आदमी कहाँ गए? इसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सबको हलाक कर दिया और तू मुझे कत्ल कर ही नहीं सकता जब तक कि वो काम ना करे जो मैं तुम्हें बताऊं। तो इसने उससे कहा कि एक मैदान में सब लोगों को जमा कर और मुझे खजूर के डंड पर सूली दे, फिर मेरे तुरकश से एक तीर निकाल और बिस्मिल्लाह रब्बिल ग़लामी कहकर मार। ऐसा करेगा तो तू मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह ने ऐसा ही किया तो तीर लड़के की कनपट्टी पर लगा और इसने अपना हाथ इस पर रखा और वह सले बहक हो गया। ये देखकर तमाम लोग ईमान ले आए। इस पर बादशाह को और ज़्यादा अफसोस हुआ और उसने एक खंदक खुदवाई और इसमें आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो दीन से ना फिरे इससे इसकी जलाई हुई आग में डाल दो। लोग डाले गए, यहाँ तक कि एक औरत के बारे में आता है कि एक औरत आई और इसकी गोद में एक बच्चा था। वो ज़रा झिझकी। बच्चे ने कहा, ऐ मेरी माँ सब्र कर, ना झिझक, तू सच्चे दीन पर है। वो बच्चा और माँ भी आग में डाल दिए गए। हदीस सही में है कि लोग बादशाह के पास आकर एक दूसरे के लिए गवाही देते थे कि उन्होंने तामील हुक्म में कोताही नहीं की। ईमानदारों को आग में डाल दिया गया और मरवी है कि जो मोमन आग में डाले गए, अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी आग में पड़ने से कबल इनकी रूहें कब्ज़ फरमाकर इन्हें निजात दी और आग ने खंदक के किनारों से बाहर निकलकर किनारे पर बैठे हुए कफ़ार को जला दिया। इस वाक़या में मोमिनीन को सब्र और अहले मक्का की इज़ार रसानियों पर तहम्मुल करने की तरगीब दिलाई गई है कि इंसान जितनी भी मुश्किलात आएँ, अल्लाह तबारक व ताला के दीन के ऊपर साबित कदम रहे तो अल्लाह तबारक व ताला इंसान से राज़ी होता है। आगे सूरत तारिक है। ये मक्की सूरत है। इसमें 17 आयतें और 1 रकू है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, वस्समाई वत्तारिक, आसमान की कसम और रात को आने वाले की, वमा अदराक मत्तारिक, और तुम क्या जानो वो रात को आने वाला क्या है, अन्नजमुस साकिब, खूब चमकता तारा, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कोई जान नहीं जिस पर निगहबान ना हो, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो चाहिए कि आदमी गौर करे कि किस चीज़ से बनाया गया है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला अब इंसान के बारे में बात करते हुए फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू सोच तू कैसे पैदा हुआ। एक पानी की गंदे कतरे से जिसकी कोई बुक्कत नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ, वही गंदा कतरा अगर हमारे कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, और वही गंदा कतरा हमारे जिस्म को लग जाए, जिस्म नापाक हो जाता है। हम उससे ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की प्यारी ज़ाते मुक़द्दस पर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कितना मेहरबान है हम इंसानों के पास, जो उसी गंदे कतरे को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। समंदर हमारे ताबिया हैं, समंदर के अंदर गोताखोर जाते हैं, सिपियाँ चुन के लाते हैं, समंदर की तहों में से हीरे निकाल के लाते हैं। और कमाल बात पता क्या है, ये हीरा कहाँ से आता है? एक मछली के मुंह से निकलता है, मछली के मुंह से निकलता है। और कुरान पाक में उस मछली का जिक्र आया। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि उसके पेट से सुच्चे मोती निकलते हैं। बताओ वो कौन निकालता है? बताओ वो कौन निकालता है? अल्लाह की साथ। समंदरों की तहों में कौन तुझे अक्ल देता है कि तू डूब जा और फिर सलामत बाहर निकल? कौन है जो पहाड़ों में से सोना निकाल देता है? कौन है कि उसी पहाड़ में से रेत भी निकालता है, उसी पहाड़ में से पत्थर भी निकालता है, उसी पहाड़ में से कोयला भी निकालता है, उसी पहाड़ से तुझे गैस भी निकाल के देता है, और उसी पहाड़ से तुम्हारे लिए सोना भी निकालता है, तुम्हारे लिए नमक भी निकालता है। कितने मादनियात हैं जो हमारे पहाड़ हमारे लिए सीमट बजरी की सूरत में बना रहे, पत्थर की सूरत में बना रहे, संगे मरमर की सूरत में बना रहे। बताओ ये सब कौन बनाने वाला? अल्लाह से। तो कितना कम गौर करते हैं हम कुरान पाक में, कितनी कम नसीहत करते हैं, जबकि हम वो इंसान है कि अगर हमारे मुंह के ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो हम उसे उड़ा नहीं सकते, और अगर कोई मक्खी हमारे आगे से एक टुकड़ा उठा के ले जाए ना तो हम उससे वो छीन नहीं सकते कि हम उस मक्खी को उठा लें।
अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात बड़ी ही मेहरबान है कि जिसने हमें इस गंदे पानी से बनाकर हमें इज़्ज़त अता फरमाई, हमें दुनिया भर में और आखिरत में आला मकाम वालों में से कर दिया, आक़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कर दिया, आपकी शफाअती में से कर दिया। अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं वस्समाई ज़ातिर रज, आसमान की कसम जिससे मैं उम्मीद उतारता हूँ, वल अर्दि ज़ातिस सब, और ज़मीन की जो इससे खेलती है। आसमान से पानी बरसता है, ज़मीन उस पानी से खेलती है, कभी समंदर जारी करती है, कभी नहरें जारी करती है, कभी खेत खलियान में फूल उगाती है। ये पानी से ज़मीन खेल नहीं रही तो क्या कर रही? कभी उससे कैसे करती है, कभी कैसे करती है, फिर कभी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ज़मीन से पानी निकालते हैं ना हम, जब बोर करते हैं तो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है तो वो पानी अपने अंदर चूस लेती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमान मैंने पानी के लिए बनाया। वैसे देखो तो आसमान के ऊपर कोई टूटी नज़र नहीं आती, कोई रखना नज़र नहीं आता कि कोई सुराख है कि उसमें से टिप टिप कर रहा है, कोई रखना नहीं है। और ज़मीन में देखो तो कोई जाली नहीं है कि जिसके अंदर सीवरेज से जज़ब हो जाता है। फिर कैसे पीती है ज़मीन और कैसे बरसाता है आसमान? तो अक्लमंद के लिए इसमें गौर है। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं वाक़ई कैदा, और मैं अपनी खुफिया तदबीरें तुम काफरों को ढील दो, इन्हें कुछ थोड़ी सी मोहलत दो। आक़ाए मुस्तफ़ा से फरमान किया जा रहा है कि आप उन्हें मोहलत दो, भटकते हो, वो गुमराह हैं, भटकते चले जाएं गुमराही में। फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, तो तुम नसीहत सुनाओ, तो यही नसीहत सुनाने वाले हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ सुना देना है, किसी भी तरह से तुम्हें आजमाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दर्जात को अल्लाह ताला क़यामत तक रखने वाला है। जो आक़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफ़ें आई वो सिर्फ सबक के लिए आई, और सबक उन्हें नहीं हमें दिया जा रहा। वो तो थे ही बच्चे हुए, अम्बिया कराम तो मासूमुल ख़ता होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। हमारे सबक के लिए कि हम उससे सीखें। और फिर अल्लाह तबारक व ताला आगे सूरत बलद नाज़िल फरमाते हुए फरमाते हैं, इसमें 20 आयतें और 1 रकू है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की कसम ए महबूब, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ए महबूब तुम उस शहर में तशरीफ़ फरमाओ। ये अल्लाह तबारक व ताला मदीना तैयबा की सरज़मीन की कसम खा रहे हैं कि मुझे कसम है उस शहर की कि नबी मोहतरम जिसमें तुम मौजूद हो। कितनी अज़मत है उस शहर की। अल्लाह तबारक व ताला जिसके बारे में कसम खाता है उसकी यकीनन बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा अज़मत है। और आगे सूरत शम्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही वो सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने 7 दफ़ा कसम खाई। पूरी की पूरी सूरत ही कसमों के ऊपर मौजूद है। क्या कहता है अल्लाह ताला, किस किस चीज़ की कसम खाता है? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं वश्शम्सी वद्दुहा, और सूरज और इसकी रोशनी की कसम, सूरज और उसकी रोशनी की कसम, वल कमरी इज़ा तलाहा, और चांद की जब इसके पीछे आए, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की जब इसे चमकाए, वल लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की जब इसे छुपाए, वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान और इसके बनाने वाले की कसम, वल अर्दी वमा तहाहा, और ज़मीन और इसके फैलाने वाले की कसम, व नफ्सिन वमा सवाहा, और जान की और इसकी जिसने इसे ठीक बनाया, फल्हमहा फुजूरहा वत्तक़वाहा, फिर इसकी बदकारी और इसकी परहेज़गार दिल की। कद अफलहा मन ज़क्काहा, बेशक मुराद को पहुंचा जिसने इसे सुथरा किया। वक़द खाब मन दस्साहा, ना मुराद हुआ जिसने इसे अपनी गुनाहगारी में छुपाया। इंसान गफलत में पड़ा हुआ है जबकि अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने अपने इस कलाम की कसमें खा रहा है और बार बार आगाह कर रहा है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, ठहर जा, रुक जा, सुन ले, लौट अपने रब की तरफ। ए गफलत भरे इंसान, लौट अपने रब की तरफ। तेरा रब कितना रहीम है। वो कहता है इंसान अगर तू मुझसे तौबा कर लेगा मैं तेरे सारे धोने धो दूंगा, तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो गुमराही में गुजार के आया जो वक्त उसके बारे में तुझसे पूछा नहीं जाएगा, बशर्ता कि तू तौबा कर। तौबा एक ऐसा वजू है जिसके कर लेने से इंसान पाक हो जाता है। जिस तरह नमाज के लिए वजू ज़रूरी है, इसलिए ईमान के लिए तौबा ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व ताला आगे फरमाते हैं, सूरत दोहा, ये मक्की सूरत है, इसमें 11 आयतें और 1 रकू है।
वद्दुहा, चाश्त की कसम, चाश्त की कसम। चाश्त वो वक्त होता है कि जब सूरज बुलंद किया जाता है। वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब पर्दे डाले। मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, क्या तुम्हें तुम्हारे रब ने ना छोड़ा और ना मकर दिया। अब इसमें एक शान नज़ूल है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ दिन वही ना आई, कुछ दिन वही ना आई तो मुनाफिक कहने लगे कि हजूर पाक को शायद उसके रब ने बुला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वद्दुहा नाज़िल फरमाई और इसमें आयत नाज़िल फरमाई मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। ए नबी, इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं है और ना ही तुम्हारे इस वही से अल्लाह की ज़ात मुकर रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों दस्त मुबारक उठाए और उम्मत के हक में दुआ की, उम्मत के हक में दुआ की। क्योंकि जब ये आयत आई ना कि वल्लैली इज़ा सजा, और जब रात पर्दे डालेगी, यानी जब क़यामत के बारे में जिक्र किया गया, रात जो छाए जाने वाली। अब यहाँ पर दो रवायतें हैं, एक तो ये हजूर के जुल्फों के बारे में भी आया है, क्योंकि वद्दुहा कहते हैं चमकते चेहरे। चाश्त के वक्त से मुराद ली गई है। चाश्त का वक्त होता है जब खूब सूरज रोशन होता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की अल्लाह ताला कसम करते हुए कह रहे हैं वद्दुहा, यानी तुम्हारे इस चमकते चेहरे की कसम जो आफताब की तरह उस आफताब की तरह रोशन है जिस तरह आफताब चाश्त के वक्त रोशन है। मुझे उस जितना रोशन तेरा चेहरा है उसकी कसम खाता हूँ। और फिर आपकी जुल्फ़ों मुबारक के बारे में कहते हैं वल्लैली इज़ा सजा, ये जो तुम्हारे चेहरे पे जुल्फ़ें आती है ना, एक घटा सी छा जाती है। इस घटा की मुझे कसम कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। ये जो काफर कह रहे हैं ना कि तुम्हें तेरे रब ने भुला दिया है, मैंने तुझे नहीं भुलाया है नबी मोहतरम, मैंने तुम्हें याद रखा हुआ है। और फिर आगे अलम नशरा में तो अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि मैंने तो तुम्हारा चर्चा अपने साथ कर दिया, हर वक्त मेरे साथ ही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक तुम्हारी पिछली तुम्हारे पहले से बेहतर है। वो जो पिछली जिंदगी है वो आगे आने वाली से बेहतर है। ए नबी, तेरा हर कदम पिछले कदम से ज्यादा फजीलत वाला है, तेरा हर काम पिछले काम से ज्यादा फजीलत वाला है। आया दिन तेरे मर्तबे में और इजाफा कर रहा है। जो दिन ऊपर जा रहा है वो तेरे मर्तबे को इतना बढ़ाएगा कि नबी मोहतरम क़यामत तक तेरा जिक्र मेरे जिक्र के साथ है। क़यामत तक तेरे जिक्र को अल्लाह ताला फरमाएगा। और ये वही नबी हैं कि जिसने उम्मत के हक में दुआ फरमाई और अर्ज किया अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर दरियाफ्त कीजिए मेरे नबी क्यों परेशान हैं, मेरे नबी क्यों गमज़दा हैं, मेरे नबी क्यों आंसू बहा रहे हैं। जिब्राईल अमीन आते हैं और हस्बे हुक्म हाजिर होकर दरियाफ्त करते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तमाम हाल बताते हैं और गमे उम्मत का इजहार फरमाते हैं। हज़रत जिब्राईल बारगाह इलाही में दोबारा जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरा नबी अपनी उम्मत के बारे में परेशान है, अपनी उम्मत के बारे में परेशान है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उन्हें कहो वाला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, ए नबी परेशान ना हो, ए नबी रंजीदा ना हो, अनकरीब तेरा रब तुझे राजी कर, अनकरीब तेरा रब तुम्हें इतना देगा कि तू उससे राजी हो। सोचो कितना प्यारा अल्फाज है। जितने भी अंबिया कराम आए क्या पूछते आए, यही कहते आए ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम क्या करें कि तू हमसे राजी हो जा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम क्या करें कि तू हमसे राजी हो जा। लेकिन जब आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क्या नबी हम अनकरीब आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। तो ये कितनी प्यारी फजीलत है मेरे आका मुस्तफ़ा की। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं व वजदक दालन फहदा, फिर हमने ए नबी जब खुद रफ्ता अपनी मोहब्बत में आपको पाया, यानी आप हमारी मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़े, इस कदर आगे बढ़े कि अपने आप को अल्लाह के लिए हर वक्त तैयार कर पाया। नमाजों में खड़े होते तो इस तरह से खड़े होते कि पाँव पे स्वेलिंग आ जाती, मगर फिर भी नमाज जारी रहती। सजदों में सर रखते तो कई घंटे गुजर जाते, रब ताला के आगे से सर ना उठाते। एक वक्त में खाते तो 10 दिन फाका करते। क्यों? क्या इनके लिए मखमल नहीं थे अल्लाह के पास? क्या इनके लिए बड़े बड़े घर नहीं थे अल्लाह के पास?
یہ تو اللہ کے نبی تھے. ہم تم کون ہیں؟ وہ تو نبی ہے نا. لیکن انہوں نے تو زندگی ہمیشہ ٹاٹ کے کپڑوں میں گزاری اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. تو یہ خود رفتگی ہے. اللہ کہتا ہے جب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہم نے تمہیں راہ دی. یعنی راہ دینے سے مراد کہ اللہ نے آپ کی محبت کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک آپ کے چرچے کو اپنے چرچے کے ساتھ رکھا. ہر حال میں جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. سوچو جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ساتھ ہے. جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے ساتھ رکھا. نمازوں میں ساتھ، سجدوں میں ساتھ، ممبروں کے ساتھ، مسجدوں میں ساتھ، ہر حال میں اپنے ساتھ رکھا. حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محترم یقیناً ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ ان قریب آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الم نشرح میں مزید فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کشادہ کیا؟ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے، حضور ساتھ پڑھتے تھے. کہا نہیں میرے نبی سنیے، سینے پہ لکھنا ہمارا کام ہے، ہم آپ کے سینے کو کھول دیں گے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور تم پر سے تمہارا بوجھ ہلکا اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. وہ کمر کس بوجھ نے توڑ رکھی تھی؟ امت کے گناہوں. ہر وقت امت کے لیے روتے تھے تو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا سحر عطا فرما دیا. اے نبی آپ کے پاس شفاعت کبریٰ ہے. آپ قیامت کے دن سجدے میں سر رکھ کے مجھ سے مانگ لیجئے گا جو دل چاہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی ہم تمہارے ذکر کو ہمیشہ اپنے ذکر کے ساتھ رکھیں گے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبر پر، خطبوں میں اور جہاں کہیں اللہ کی عبادت کریں ہر بات میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے. یہ اتنا بڑا مقام، یہ اتنا بڑا مرتبہ 1,24,000 پیغمبروں کو نہ حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان میں سے 313 یا دوسری روایت کے مطابق 322 رسول ہوئے. اور پھر ان 322 نبیوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 وہ رسول منتخب کیے جنہیں کتابیں عطا فرمائیں اور ان 4 میں سردار پھر بھی آقا مصطفیٰ کو بنا رہے اور تمام انبیاء کی امامت کروا کے اس پہ مہر لگا دی کہ سب تیرے پیچھے ہیں نبی، تو سب سے آگے. اور پھر وہ کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک کے لیے ہدی للمتقین بن گئی، متقین کے لیے ہدایت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بات مہر کے طور پر فرما دی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے بندو جان جاؤ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جنت ایویں نہیں مل جاتی، جنت کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ قربانیاں کبھی جان کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی مال کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی پھلوں کے نقصان کی صورت میں، کبھی کاروبار کے نقصان کی صورت میں، کبھی اولاد کے نقصان کی صورت میں. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار هم فیہا خالدون. بتا دو ان لوگوں کو، وہ جو ایمان لائے، وہ جو عمل صالحہ کرتے رہے ہیں، انہیں بتا دو تمہارے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی اور تم وہاں پر بیٹھے رہو گے. اور 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، بلکہ ہم فیہا خالدون کہہ کے مہر لگا دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم وہاں رہو. تمہیں کوئی نکالے گا نہیں. دنیا تو کرائے کا مکان ہے، مالک مکان بھی کرایہ دار ہے اور کرایہ دار بھی کرایہ دار ہے. نہ مالک نے ساتھ لے کے جانا نہ کرایہ دار نے، لیکن وہاں پہ جو بھی ہے وہ مالک مکان ہی ہے. اسے کوئی نہیں نکالے گا، اسے کوئی نہیں کہے گا میرا مکان خالی کر دو، جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ، مجھے خود ضرورت ہے.
اللہ तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत मेहमान नवाजी हमारे लिए तैयार करके रखी है जन्नत की सूरत में। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ये सूरत नाज़िल फरमाते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें शब कदर के बारे में बताते हैं कि ये क्या है। सूरत का नाम सूरतुल कदर, ये सूरत मक्की है, इसमें 5 आयतें और 1 रकू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने उसे शब कदर में उतारा। किससे? कुरान पाक शब कदर में उतारा। और शब कदर के बारे में क्या है? जैसे रमज़ान की ताक रातों के अंदर तलाश करो, आखिरी ताक रातों के अंदर रमज़ान में इसको तलाश करो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, अब बंदो तुम क्या जानो वो लैलतुल कद्र क्या है। वो लैलतुल कद्र, वो कदर वाली रात किसको कहते हैं? क्या जानो तुम लोग वो कदर क्या है। एक कौम में एक शख्स गुजरा था, उसने अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत की कि 1000 साल इबादत में गुजारा, 1000 साल इबादत में गुजारा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कहा कि मेरे नबी मैं तो तुम्हें राजी करूँगा, मैं तुम्हें राजी करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर को बना और फिर कहा रमज़ान की आखिरी ताक रातों में इसको तलाश करो। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन। क्या कहता है अल्लाह ताला? नाज़ल करता है मलाइकतु फरिश्ते, वर्रूहु और रूहें, इसके अंदर रूहें नाज़ल की जाती हैं, इसके अंदर फरिश्ते नाज़ल किए जाते हैं, इसके अंदर रूहें नाज़ल की जाती हैं। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म को लेके आती हैं। मिन कुल्ली अम्रिन, हर तरह के मामले में। अब यहाँ पे जो इख्तलाफ पाया जाता है ना उलमा कराम में, अक्सर हम लोग कहते हैं कि शब बरात ऐसी रात है जिसके अंदर अल्लाह हर तकदीर के फैसले करता है। तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान की बात सुनो ना। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। अब उसका जवाब खुद दे रहे हैं, ना तेरे से ना मेरे से ना किसी और से। तफसीर बिल कुरान, कुरान खुद अपनी तफसीर बयान कर रहा है। क्या कहता है कुरान? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हम अक्सर कहते हैं शब मिराज 1000 महीनों से बेहतर है, जो इसमें एक रोज़ा रखेगा उसे 100 साल रोज़े रखने के सवाब मिलेंगे। फिर शब बरात के बारे में कहते हैं ये वो रात है जिसमें एक रोज़ा जो है वो 100 साल के रोज़ों के बराबर नहीं। शब कदर वो रात है जो 1000 महीनों के बराबर। और फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु, इसके अंदर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। क्या लेके? वर्रूहु, रूहें लेके नाज़िल होते हैं। जिन्होंने पैदा होना होता है उनकी रूहें ज़मीन पर भेज दी जाती हैं, माओ के पेटों में। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म को लेके आ जाते हैं। मिन कुल्ली अम्रिन, हर तरह के मामले। कुल से मतलब, कुल का मतलब तमाम, पैदा होना, मरना, इज्जत पाना, रुसवा होना, रोजी लेना, रोजी ना लेना, जितने भी फैसले हैं दुनिया के वो इस रात में। कुल्ली अम्रिन से मतलब हर ही फैसला, हर तरह का फैसला। सलाम, सलामती वाली रात, सलाम ये सलामती वाली रात है। ही यहत्ता मतला इल फज्र, और ये वो सलामती वाली रात है कि जो शाम होते ही सलामती लेके आना शुरू हो जाती है और सुबह तक सलामती ही देती रहती है, सलामती ही बांटती चली जाती है। लिहाजा हमें इस रात को तलाश करना चाहिए। और अलबत्ता इसको तलाश करने के लिए तुम्हें ये कहा गया कि किसी एक रात में ना इसे तलाश करो, बल्कि रमज़ान का पूरा आखिरी अशरा दिया जाए, इस पूरे अशरे में तलाश करो। ठीक है, पूरे अशरे के अंदर रमज़ान की लैलतुल कद्र को तलाश किया करें। कोशिश किया करें कि जब भी रमज़ान की ताक रातें आती हैं हर रात में जागे। हर रात का इब्तदाई और आखिरी मरहला अपनी नींद से गाफिल होकर रब की याद में गुजारें। रमज़ान का तो एक एक पल इबादत है। आगे आती है सूरत बैय्यिना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि 8 आयतें और 1 रुकू हैं। यहाँ पर काफिरों का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। ए नबी मोहतरम, ये जो किताबी मुशरिक है या काफिर, मुशरिक और काफिर में फ़र्क होता है। मुशरिक वो है
जो अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ की इबादत करते हैं। जैसे ईसाई ले लें, वो हमारे अहले किताब तो हैं मगर मुश्रिक है, अल्लाह को छोड़कर ईसा को खुदा मानते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मुश्रिक। लेकिन जो काफिर है वो किसी चीज़ को भी नहीं मानता, ना रब की इबादत करता है, ना रब के अलावा किसी और की इबादत करता है, उसे कहते हैं काफिर। तो यहाँ पर दोनों के लिए अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें बता दीजिए कि तुम्हारे लिए जहन्नम का घर है, वो जहन्नम सारी मखलूक से बदतर लोगों का घर है, सारी मखलूक में जो सबसे बदतर लोग होंगे वो उनका घर है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो वो यकीनन मखलूक में सबसे बेहतर है। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। तो जन्नत वालों के लिए अल्लाह ताला क्या खुशखबरी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जन्नत में जाने वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए और ईमान के साथ साथ अमल सालेह करते रहे। उन लोगों को बता दो कि उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग, उनका सिला उनके रब के पास बागों की सूरत में है, और वो बाग ऐसे हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनको वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। रादी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, उन्हें बता दीजिए कि अल्लाह उनसे राजी है और वो भी अल्लाह से राजी हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, और ये इसके लिए जो अपने रब से डरे। आगे सूरत कारिया, ये मक्की है, इसमें 11 आयतें और 1 रकू है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के बारे में यहाँ पर कम तोलने वालों को दोबारा जिक्र फरमाता है, और फिर उन लोगों के बारे में भी जिक्र फरमाता है जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, और उन लोगों के बारे में भी कि जिनकी तोले हल्की होंगी और जिनकी तोले भारी, यानी उनके जो अमाल हैं उनकी तोले हल्की या भारी होंगी। अल्लाह ताला कहते हैं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसकी तोलें भारी हुई, फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, तो वो मन माने ऐश में होगा, जिसकी तोलें ज़्यादा होंगी वो ऐश में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, और जिसकी तोलें हल्की पड़ेंगी, फ़उम्मुहु हाविया, तो वो नीचा दिखाने वाली की गोद में। वमा अदराका मा हिया, तुम क्या जानो कि वो नीचा दिखाने वाली क्या है। नारुन हामिया, एक आग शोले मारती। आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरत तकासुर नाज़िल फरमाते हैं। ये सूरत मक्की है, इसमें 8 आयतें 1 रकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने। इंसान दुनिया में आता है ना, बस दुनिया के काम में लग जाता है। घर बना लिया, घर के बाद अब जनाब गाड़ी बना लूँ, गाड़ी बना ली, अब जेवरात बना लूँ, जेवरात बना लिए, अब बेटों के लिए ये बना लूँ, अब बेटियों के लिए ये, हत्ता कि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। इंसान अपने अमाल नहीं बना सकता। कुरान पढ़े ना, फिर हमें मालूम हो कि कुरान क्या फरमाता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर तुम जान जाओ ना क़यामत क्या चीज़ है, तो तुम दुनिया में हंसना छोड़ दो, बल्कि अगर कोई हंसेगा ना तो तुम उस पर ताज्जुब करोगे कि कितना बेवकूफ़ है, किस बात पे हंसता है। देखिए सब ने चले जाना है, लेकिन वो इंसान कितना बेवकूफ़ है कि जिसको पता भी है कि मेरा घर कब्र है, लेकिन वो उसको चिरागों से रोशन नहीं करता, अपने घर में कमकमें जलाता है। ये ईंट बजरी के मकानात को तो हम पलस्तर भी करवाते हैं, पेंट भी करवा रहे हैं, पर्दे भी अच्छे लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा दायमी घर है उसको हम खौफनाक और भयानक करते चले जा रहे हैं, अंधेरों से भरा हुआ। हमें ये मालूम ही नहीं हो रहा कि हम किस तरफ खसारों के अंदर चले जा रहे हैं। तो हमें इस बारे में डरना है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से अपनी आक़िबत को बनाना है, अपना तज़किया नफ्स करना है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो हमें पुकारने वाली है। किसी को मालूम नहीं किसने कब चले जाना है, लेकिन जब चला जाना है ना, फिर उस वक्त पता चलेगा कि हमारी तोलें कैसी हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान का जो पेट है वो कब्र की मिट्टी में जाके भरेगा। दुनिया में इंसान का पेट नहीं भर सकता, हत्ता के तो कब्रों का मुंह देखते। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, तो एक सहाबी मकान बना रहे थे, उनका मकान कंप्लीट हो चुका था और छत डालने वाली थी। तो उन्होंने किसी दूसरे से पूछा, बताओ कुरान पाक की कोई आयत नाज़िल हुई है आज? तो उसने कहा कि हाँ नाज़िल हुई है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें माल की गफलत में रखा है और कब्रों के मुंह खुल चुके हैं। तो
उसने कहा चलो फिर चलते हैं। उसने अपना मकाम वहीं छोड़ दिया और उसने कहा क्या वो चलते हैं हदायत से, क्योंकि मौत तो हमारे सर पे खड़ी है। तो हमें भी इस बात से अपना तज़किया नफ्स करना है कि मौत हमारे सर पे खड़ी है। उसने आने से पहले नहीं पूछना कि कौन तैयार है कौन नहीं तैयार। आज हमें जब दावत हक के लिए बुलाया जाता तो हमारे पास बहाना होता है, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे आऊँ, मेरे घर में ये मसला है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरे साथ ये मसला है। लेकिन जब फरिश्ते ने आना है ना लेने के लिए, उसने नहीं पूछा कि तेरे बच्चे अभी छोटे हैं या बड़े हैं, तेरे घर में आज खाना बना है अभी या तू बना लेगी, तू खाना बना ले, मैं फिर ले चलता हूँ। नहीं, मौत का वक्त है, मौत का वक्त तय है। शायर ने कहा अजल ने ना छोड़ा ना किसरा ना दारा, कहाँ के सिकंदर कहाँ के बिहार, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इंसान जब पैदा होता है ना तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, मेरे यहाँ पोता पैदा हुआ, मेरे यहाँ आज लड़का पैदा हो गया, मेरी आज ये बन गई, मेरी नस्ल चल पड़ी, हम बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अल्लाह ताला तो हमें एक नई आजमाइश में डाल रहे हैं। इसका पैदा होना हमारे लिए आजमाइशों का दरवाजा एक खोल देना है। अल्लाह ताला कहता है अब देख, पहले इस नेमत पे शुक्र अदा कर, फिर इस नेमत को इस्तेमाल करने का तरीका सीख। औलाद तो तूने पैदा कर ली, इसको अपने रब का कलाम सिखा, इसको अपने रब का ईमान सिखा, इसको अपने रब का दीन सिखा। इसे बता कि तू बेबहारा कुत्ता नहीं है जहाँ मर्जी मुंह उठा के चलता फिरेगा, तू उस नबी का गुलाम है, तू उस रब का बंदा है। तेरे सामने दुनिया इम्तिहान का है। आज तेरा दाखिला एक कलमे की सूरत में एक स्कूल में कर दिया गया है। इस स्कूल में एक निसाब है, उस निसाब के 5 रुकन हैं, जिसको पहले नंबर पे तौहीद को सीखना है, जिसको दूसरे नंबर पे नमाज से सीखना है, जिसको तीसरे नंबर पे रोज़े को सीखना है, जिसको चौथे नंबर पे हज को सीखना है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इन तमाम रुकनों को सीखने के बाद फिर तेरा इम्तिहान लिया जाएगा। तू किस किताब में फर्स्ट है? तेरी नमाज रियाकारी वाली तो नहीं, तेरी नमाज दिखाने वाली तो नहीं, तेरी नमाज तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के बगैर तो नहीं, तेरी नमाज में ध्यान कहीं शैतान की तरफ तो नहीं, तेरी नमाज कहीं तुम्हें मगरूर तो नहीं बना रही, कहीं तू किसी ऐसे रुकन का एहतमाम तो नहीं कर रहा जो रब की रजा के खिलाफ है। तमाम पहलुओं से देखा जाएगा। फिर एक किताब में पास होगा तो पास नहीं हो जाएगा मेरी बहनों, फिर दूसरी किताब खोली जाएगी, वो किताब रोज़ा है। हाँ भाई बता, तूने कितने रोजे रखे? रोजा रखा तो क्या सोचा था? रोजे के ऊपर तूने क्या रोजा रख के अपने कानों को, आंखों को, नाक को, जबान को भी रोजा रखवाया था? या सिर्फ तेरी जबान ही रोजा रखती रही, या सिर्फ तेरा नफ्स ही रोजा रखता रहा, या फिर सिर्फ तेरा पेट ही रोजा रखता रहा? नहीं, हर चीज का रोजा रख। जबान को बेहयाई बोलने से बचा। इसी तरह अपने नफ्स को पाक और सुथरा कर। हर चीज के अंदर अपने आप को देख कि क्या तूने हर चीज का रोजा रखा। और जब तू अपने रोजे के इस रुकन को मुकम्मल करेगा, फिर उसके बाद मेरा एक और रुकन शुरू हो जाएगा, और वो रुकन ज़कात है। माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च करेगा, कैसे खर्च होगा वो तेरा माल, इसके बारे में तुझसे पूछा जाए। गर्ज के हर रुकन के बारे में तुझसे पूछा जाए कि तू क्या था, तू कौन था, तू कैसे था, तू कहाँ से आया, तू कहाँ जाएगा। इन तमाम बातों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आगाह किया जाएगा। इंसान से पूछा जाएगा कि बता इंसान, तू दुनिया पे कुरान से हदायत हासिल करता रहा कि नहीं? क्या तूने कुरान पाक में गौर ना किया? क्या तूने अपने दिलों को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर लिया? क्या तुम्हारे सीनों में अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम का असर बाकी ना रहा? तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन। हाँ, अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत कभी ना रखते, कभी ना रखते माल की मोहब्बत।
ला तरवुन्नल जहीम, बेशक जरूर जहन्नम को देखोगे, सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर बेशक जरूर इसे यकीनी देखना देखोगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फिर बेशक जरूर इस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाना है। ये जो दुनिया में तुम काम कर रहे हो ना, इसके बारे में तुम बेफिक्र ना हो, पूछा जाएगा। वल अस्र, अल्लाह ताला कहता है ये ज़माना है, ज़माने की कसम खाते हुए कहता है वल अस्र, कसम है मुझे ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान तो बड़े ही खसारे में, इंसान बहुत खसारे में। इंसान को मालूम ही नहीं कि वो जो कर रहा है इसके बारे में उससे कितना पूछा जाए, क्या हालात होंगे उसके साथ। लेकिन इंसान एक ही दौड़ में, एक ही धूप में लगा हुआ है, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, उन लोगों के जो ईमान लाए, जो अमले सालिया करते रहे, जिन्होंने हक की दावत दी, जिन्होंने सब्र किया, ये चंद लोग हैं जो बख्शे जाएंगे। सब्र करने वाले, अतात करने वाले, अमले सालिया करने वाले और दीन की दावत देने वाले, तो अपने आप को इन लोगों में शुमार करो, अपने आप को इन लोगों में दाखिल करो। रब ताला से दुआ किया करो, अल्लाह हमें ईमान वालों में दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा आरिनल हक़्क़ हक़्क़न, अल्लाह हमें हक को हक कहने वाली ज़बान, हमें हक को हक सिखा दे, हमें हक को हक करके दिखा दे। अल्लाहुम्मा आरिनल बातिला बातिला, ए अल्लाह हमें बातिल को बातिल समझने की तौफीक अता फरमा, हम जान जाए कि बातिल क्या है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इंसान के फहम के मुताबिक अता फरमाता है। फिर सूरह फील आती है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुम जानते नहीं हो कि हाथी वालों के साथ क्या सलूक हुआ। बताओ, वो अबरहा जो अपनी फौज के ऊपर बड़ा घमंड रखता, वो अबरहा जो ये समझता था कि रब के घर को गिरा दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का ये वाक़या है। आपके दादा अब्दुल मुतलिब उस वक्त काबा के मुतवल्ली थे। वहाँ पर एक अबरहा नामी बादशाह था और इन्होंने एक कलीसिया बनाया, गिरजाघर, और लोगों से कहा कि जिस तरह तुम काबे का तवाफ करते हो इस कलीसिया का भी तवाफ करो। मुसलमानों ने ये सुना तो उन्हें इस बात पर तैश आई और मुसलमानों में से एक शख्स ने जाके उस कलीसिया के अंदर पाखाना कर दिया और कलीसिया के अंदर मल दिया। वो कहा कि हमारे लिए ये जगह एक नापाक जगह है, हम इसमें दाखिल नहीं हो। इस पर अबरहा ने घमंड किया और कहा कि मैं भी तेरे रब के घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और अपने हाथियों की फौज के साथ काबा मुअज़्ज़मा पर हमले के लिए आया और डराने के लिए, निशानी के लिए। जैसे बंदा किसी जगह पे दाखिल होता है ना तो अपना दबदबा पहले पैदा करता है, तो दबदबा करने के लिए इसने अरबियों के अरबी जो लोग थे उनके कुछ मवेशी अपनी कैद में कर लिए, जिसमें 200 ऊँट और बकरियां हज़रत अब्दुल मुतलिब की भी थी। हज़रत अब्दुल मुतलिब को जब पता चला कि मेरे ऊँट और बकरियां उसने अपने कब्जे में कर लिए, तो अपने जाहो जलाल के साथ अबरहा के सामने गए। जैसे ही उसके दरबार में दाखिल हुए तो वो उसके हज़रत अब्दुल मुतलिब के नूर नबुव्वत की चमक के साथ उसने ये देखा तो उससे बैठा ना गया, वो आपके इस्तकबाल में खड़ा हो गया और बुला लिया और अपने साथ नशिस्त पे बिठा लिया और पूछा कि आने का मकसद क्या है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मेरे आने का मकसद ये है कि मेरे जो ऊँट और बकरियां तुमने अपने कब्जे में कर लिया वो मुझे वापस कर दो। इस पर वो हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है तुम्हारी, मैं तो समझा था कि तुम अपने रब के घर के बारे में मेरे से कुछ बात करने आओगे, लेकिन तुम तो अपने ऊँट और बकरियों के पीछे लगे हो, तुम्हें तो अपने ऊँट और बकरियों की फिक्र है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि भाई जिसका घर है उसे बचाना भी आता है, मैं मालिक सिर्फ अपने ऊँट और बकरियों का हूँ, मैं उसी का सवाल करता हूँ। काबे का जो मालिक है उसे अपने घर की हिफाजत करना आती है, तेरे से जो बन पड़ता है तो कर ले। और अपने ऊँट और बकरियों को लेकर आए और तमाम लोगों से कहा कि आपने अपने सामान उठाओ और अब अरब के पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ और मैदान साफ कर दो, ताकि वो अगर चाहता है हमला करना तो उसे करने दो। अबरहा अपने हाथी को उठाने लगा तो हाथी उठे नहीं, और फिर जब फौज लेकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चला तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील को पुकारा, ए अबाबीलो आओ मेरे सामने हाजिर और मुझे बताओ कि क्या रब के हुक्म की तामील करोगे। अबाबील ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल बेशक हम तेरे हुक्म की तामील करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फिर जाओ समंदर में से छोटी छोटी कंकरियां अपनी चोंचों में लो और जाकर उन हाथियों को मारो, देखो कहाँ इतना सा छोटा सा परिंदा
اور کہاں اس کی اتنی سی چونچ، اور اس اتنی سی چونچ میں اتنا چھوٹا سا کبوتر، وہ پرندوں کا ایک رول جاتا ہے اور سمندر سے کنکریاں اٹھا کے لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جہاں جہاں ہاتھی ہے اس کے سر پہ جاؤ اور ایک اپنی چونچ کھولتے جاؤ، وہ چونچ کھولتے ایک کنکری، صرف ایک کنکری اس کے اوپر برستی ہے اور وہ کنکری ہاتھی سوار کی چوٹی سے گھستی ہوئی ہاتھی کو چیرتے ہوئے گزر جاتی ہے اور ہاتھی کو دھڑم کر کے گرا دیتی ہے اور تمام کا تمام لشکر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر بتاؤ کہ کیا رب ہر چیز کرنے پہ قادر نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کعبہ معظمہ کی حفاظت فرماتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں جان جاؤ تمہارا رب وہ ہے کہ جس کی تسبیح زمین اور آسمان کرتے ہیں، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں نطفے سے انسان بناتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو ایک کن پہ فیکون کرنے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اے انسانوں جھک جاؤ اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے آگے آج ہی عاجزی سے توبہ کر لو، کیونکہ تم رب کے ساتھ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، اور اگر تم کہیں مطیع و تابعدار نہ ہوئے تو اللہ کہتا ہے کہ جو تم کرو گے اس کا بھی تمہیں قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ماعون میں فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور پھر وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے، ولا یحض ولا طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے سے کنجوسی کرتا ہے اور رغبت نہیں دیتا، فویل للمصلین، تو خرابی ہے ایسی نمازیوں، بندہ نماز پڑھتا رہے پر اس کے دل میں نرمی نہ آئے، وہ کیسی نماز ہے؟ وہ کیسی نماز ہے کہ ادھر نماز پڑھے ادھر اللہ کے بندوں کو دکھائے، ادھر اللہ کے بندوں کے لیے رات نہ کرے، ادھر اللہ کے بندوں کے ساتھ خیانت کرے، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، بخیلی کرے، پیسے کو جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھے، پیسے سے محبت کرے، اپنی جان سے محبت کرے، نہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ برا کام ہے کسی کا دل دکھانا، یہ برا کام ہے کسی کے لیے گڑھا کھودنا، یہ برا کام ہے کسی کی غیبت کرنا، یہ برا کام ہے کسی کی چغلی کرنا، سخاوت نہ کرنا، کنجوسی کرنا۔ اگر انسان کے اندر یہ سارے کام ہو اور اس کی نماز اسے نہ روک سکے تو وہ نماز ہی، کیونکہ نماز تو بے حیائی سے روکنے والی چیز کرنا۔ اس لیے اپنی نمازوں کے اوپر غور کرو کہ نماز پڑھتے بھی ہو کہ نہیں۔ پہلے تو ہم نماز ہی کی طرف نہیں جاتے اور پھر پڑھ لیتے ہیں تو نماز نہیں وہ ٹکر ہی ہوتی ہے جو بس صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ میں بڑا نماز ہوں۔ تو اللہ ہمیں حقیقت کے سجدے عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر نازل کرتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تو غم نہ کر، ہم تمہیں کوثر عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ واقعہ اس کا شان نزول کیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا قاسم وفات پایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ ابتر ہو گئے ہیں۔ عربی زبان میں ابتر اس انسان کو کہتے تھے جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، تو کہنے لگے کہ تم اس کی نبوت کو کیا پھیلاؤ گے، یہ تو خود ابتر ہے، اس کا نام کیا قیامت تک چلے گا، جس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، نام تو نسلوں سے چلتے ہیں تو اس کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، تو نام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرما دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی غم نہ کر، ان کی گفتگو کے اوپر نہ جا، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، ہم نے تو تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان قریب تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا۔ یہ نسلوں والے، یہ قبیلوں والے، یہ قد قامتوں والے، یہ غلبوں والے، یہ جنگ جو قافلوں والے ابتر ہو جائیں گے۔ بتاؤ ابو جہل باقی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی؟ وہ جو قافلے کا سردار تھا ابو جہل، کسی نے اس کی اولاد دیکھی ہے؟ وہ جو قبیلے کے دعوے دیتا تھا کہ میرا قبیلہ میرا قبیلہ میرا قبیلہ، بتاؤ کس نے دیکھا ابو جہل کی اولاد میں سے کوئی آگے چلتا؟ کس نے دیکھا یزید کی اولاد میں سے کوئی آگے جاتا؟ کس نے دیکھا عبداللہ بن ابی کی اولاد میں سے آگے جاتا ہوا دیکھا؟ کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں، لیکن محمد کے غلام تو آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے کوثر، یہ ہے کوثر جو میرے رب نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی،
नबी मोहतरम आपका बेटा तो नहीं, लेकिन आपका जिक्र रब के जिक्र के साथ, और जिसे रब पसंद करे। अल्लाह ताला कहते हैं सारी की सारी बादशाही तो मेरी है, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, मैं जिससे चाहता हूँ इज्जत अता फरमाता हूँ, और जिसे मैं इज्जत अता फरमाता हूँ उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकती, और जिसे मैं जलील करता हूँ उसे सारी दुनिया मिल के भी इज्जत नहीं दे सकती। फ़इल्लम तफ़अलु वलन तफ़अलु फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह ताला कहता है डर जाओ, तुम अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ नहीं ला सकोगे अल्लाह के मुकाबले में, और हरगिज़ ला भी नहीं सकते। तो फिर अगर नहीं ला सकते तो रब ताला से डर जाओ, और डर जाओ उस जहन्नम से कि जिसमें इंसानों को ईंधन के तौर पे जलाया जाना है और पत्थरों को डाला जाना है, उस जहन्नम के खौफ से डर जाओ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे सूरत नस्र नाज़िल फरमाते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आए, वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुम देखोगे लोगों को कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं। ये आयत फतह मक्का के मौका पर नाज़िल हुई है। लोग जोक दर जोक, काफिलों के काफिले ईमान, रब ताला ने अपने नबी से किया हुआ वादा पूरा वो दिखा दिया कि बेशक हमने तेरे दीन को ही गालिब करना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरह लहब में अबू लहब के बारे में फरमा रहे हैं कि हाथ टूटे अबू लहब कि जिसकी वजह से वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तदबीर करता था। अबू जहल ने एक दफा नमाज के अंदर आपके ऊपर ओजरी ला के और इसकी बीवी मूंछ की रस्सी बना के लाई और कहने लगी कि इससे तो मैंने माज़अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचना है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो भी तबाह हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और उसके कुछ काम न आया जो माल उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अब धुसता चला जाएगा क़यामत तक, क़यामत तक नीचे ही धुसता जा रहा है। वम्रअतु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरी और उसकी जोरू यानी उसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए, फी जीदिया हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। वो जो छाल का रस्सा अल्लाह कहते हैं कि उसने मेरे नबी के लिए बनाया, उसी रस्से को मैं उसकी गर्दन के गिर्द लपेटूंगा और ऐसे लपेटूंगा कि क़यामत तक घिसती चली जाएगी उसी रस्से के साथ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे सूरत इखलास फरमाते हैं, कहते हैं कह दो कुल हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, तुम उसकी इबादत करो ना करो उसको फर्क नहीं पड़ता। ये जो तुम इबादत कर रहे हो ये तो तुम अपने बख्शने, अपने बख्शवाने के लिए कर रहे हो, रब ताला को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं, ये तो तुम्हारा ही फायदा है जो तुमने उसने हुक्म दिया कि तुम उसकी इबादत करो। लम यलिद व लम यूलद, और ना अल्लाह की कोई औलाद है और ना ही कोई उसको, वो किसकी औलाद है, ना उसकी औलाद है ना वो किसी की औलाद है, बल्कि वो आहद यकता अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई साया नहीं। आगे है सूरह फलक, ये सूरह मक्की है। कह दीजिए, अल्लाह कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तुम फरमाओ कि मैं उसकी बना लेता हूँ जो सुबह का पैदा करने वाला है, मिन शर्रि मा खलक, उसकी सब मखलूक की शर से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी डालने वालों की शर से, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उन औरतों की शर से जो ग्रोह होती हैं, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और उसकी शर से जो हसद करने वाले हसद करते हैं, इज़ा हसद, जब वो जलते हैं। ये सूरत और सूरत नास जो है आगे पीछे नाज़िल हुई, और ये उस वक्त नाज़िल हुई कि जब लबीद बिन आसम यहूदी और इसकी बेटियों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और अज़ाए ज़ाहरा पर इसका असर हुआ, कल्ब और अक्ल पर इसका कुछ असर न था। चंद रोज के बाद जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने बताया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का कुछ सामान फलां कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा
میرے جدہ جعفری آئے تھے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور اس کنویں میں سے وہ سامان برآمد کر کے لائے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور ایک کنگھی تھی، اس کے اوپر کچھ پھونک کے پڑھ کے دبا دیا گیا تھا پتھر کے نیچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورت ناس پڑھی اور جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو وہ جو گرہ باندھی تھی وہ کھلتی جاتی، اور جب آپ نے پوری سورت ناس مکمل کی تو تمام گرہ کھل گئی اور آپ سے وہ جادو ختم ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر سورت ناس نازل فرمائی، اور روایت میں ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے تو اس پر جادو اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ پر ہر وقت دم کیا کریں، سورۃ ناس کا صبح دوپہر شام 3 وقتوں میں پڑھ لیں، یا رات کو سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ پڑھ کے صورتوں پر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، حقیر فقیر سی کوشش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام کے اس عمل کو قیامت تک جاری رکھے، اور اس عمل کے ذریعے ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، سننے والے، آنے والے، بیٹھنے والے جو موجود ہیں، جو نہیں موجود، سب مسلمانوں کی بخشش